Hello students, we are doing the current challenge Indian economy is facing, that is the problem of unemployment. उसको समझने के लिए पहले हमने employment को समझे. Let's continue with the concept, lecture number 3, page number 110, topic 2, unemployment. सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट होती क्या है? See, there are two type of persons. One is comes under working population, other comes under non-working population. इंडिया के हिसाब से जो लोग 15 साल से छोटे हैं और जो लोग 60 साल से बड़े हैं, that means the population below the age of 15 and above the age of 60 does not come under the purview of working population. उन्हें working population के अंदर नहीं रखा जाता. ये assume किया जाता है कि वो काम नहीं कर सकते. तो working population किसी भी country की होती है 15 to till 60 years. इसके अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं और उन्हें काम नहीं मिलता, दे आर अनएम्प्लॉयड. अगर आपकी ये 17 है, यू कम्स अंडर वर्किंग पॉपुलेशन. आप काम नहीं कर रहे, आप अनएम्प्लॉयड तभी होंगे जब आप काम करना चाहते हैं और आप काम नहीं कर रहे. इफ आई एम एज 33 एंड 32 और 32, आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट वर्क एंड आई एम नॉट वर्किंग. अंडर इकोनॉमिक्स I cannot be considered as myself as unemployed because I do not want to get the work. So what is unemployment? Unemployment is a situation in which people who are capable and willing to work are not getting work. One, capable, जो लोग काम कर सकते हैं, able, and willing to work. Two, वो काम करना चाहते हैं. Mr. A is on a wheelchair, want to get work, does not get work. We say he is not capable of doing work. For example, he is mentally ill. Mr. A is mentally ill. He wants to get work, but he is not getting work. So, according to economics, he is not unemployed because he is not capable to do the work. Two, one is capable to work. For example, me, I am 33 years, 32 years. I can work, but I don't want to get work. I am not unemployed. So, three conditions. First condition, age 15 to 60. Second, capability. Third, capability or ability. Third, willingness to do work. The children below the age of 15 and the adult above the age 60 are not the part of working population and hence not considered to be unemployed. Persons in the age group of 15 to 60 constitute the working population. किसी भी कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन चेक करनी हो, जैसे इंडिया की, तो 15 to 60 कंप्यूट किया जाता है. इसीलिए इंडिया को यूथ नेशन कहा जाता है, क्योंकि इंडिया की मेजॉरिटी चंक ऑफ पॉपुलेशन, जो मेजर पॉपुलेशन है, वो 15 to 60 के बीच में ही है. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? यहाँ पर 3 नज़र आ रही हैं. मैं क्वेश्चन में करवाऊंगा, उसमें 6 हैं, तो ये टॉपिक अपने आप कवर हो जाएगा. सो आई वॉन्ट यू टू मूव टू पेज 113. पेज 113, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20. What do you mean by unemployment? What types of unemployment are found in rural and urban areas of India? Briefly explain. Unemployment क्या होती है? Unemployment is a situation under which those who are willing and capable to work do not get work. Following are the types of unemployment found in rural and urban areas. Number 1, open unemployment. What is open unemployment? 100% unemployment. 100% means 8 के 8 घंटे वो काम नहीं कर रहा जितनी देर वो करना चाहता है.
He want to get work, he does not get work at the existing wage rate. Open unemployment. It refers to the situation wherein the worker is willing to work and has necessary ability to work, yet he does not get work. He remains unemployed. Underline, he remains unemployed for the full time. Underline, unemployed for the full time. यहाँ पे लिख देंगे at existing wage rate. So it refers to that situation wherein the worker is willing to work at existing wage rate. जो रेट चल रहा है उस रेट पे वो काम करना चाहता है. At existing wage rate. So unemployment is a situation under which those who are, it refers to that situation wherein the worker is willing to work at existing wage rate and he has the necessary ability to work, yet he does not get work. He remains unemployed for the full time. 2. Seasonal unemployment. What is seasonal unemployment? They are unemployed for some of the time and for some of the other time they are unemployed. For some time they are employed, for other they are unemployed, or they are doing part-time job. Kind of 8 घंटे काम कर सकता है, सिर्फ 4 घंटे का काम मिल रहा है या 3 घंटे का काम मिल रहा है. This is seasonal unemployment. It occurs in case of agriculture, ice cream factories, woolen factories, etc., which are seasonal, which are of a seasonal occupation. They are busy and slack seasons. Slack stands for, underline, slack. Slack is null, N-U-L-L. Slack means null, N-U-L-L, null seasons. In the off season there is no work. The result is seasonal unemployment. 3rd, disguised unemployment. What is disguised unemployment? This is something they think they are working, practically they are not. प्रोडक्टिविटी उनकी ज़ीरो होती है या नेगेटिव में होती है, जैसे हमने मार्जिनल प्रोडक्ट किया हुआ है. 10 जने काम कर रहे हैं तो 100 यूनिट्स बन रहे हैं, 11 जने काम कर रहे हैं तो भी 100 यूनिट्स बन रहे हैं. आई रिपीट, 10 जने काम कर रहे हैं तो 100 टी शर्ट्स बन रही हैं, 11 जने काम कर रहे हैं तो भी 100 टी शर्ट्स बन रही हैं. तो 11वें बंदे को लगता है कि वो काम कर रहा है, बट एक्चुअली प्रोडक्टिविटी उसकी कोई भी नहीं है. नॉर्मली ये एग्रीकल्चर काम पे होता है या फिर जॉइंट बिजनेसेस में होता है. जिसमें फादर काम कर रहा है, कल को बच्चा बड़ा होता है वो भी उसी में चल जाता है, दूसरा बेटा भी चला जाता है, चाचा भी काम कर रहे हैं. शॉप में एक बंदे की ज़रूरत है, मैक्सिमम 2, 4 जने एक दुकान पे काम कर रहे हैं. दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज डिस्गाइज? छुपा हुआ. They think they are working, actually they are not. It is when marginal physical productivity of labor is zero or remains or sometimes it become negative. An individual is working but is unable to add to the productivity or the output. 4th, industrial unemployment. What is industrial unemployment? It includes those illiterate persons who are willing to work in industry, mining, transport, trade, construction. Problem of unemployment in industrial sector has become acute because of increasing migration of rural people to urban industrial areas in search of employment. What is industrial unemployment? बहुत सारे बिहार, उत्तर प्रदेश से लोग ओडिशा चले गए इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, पंजाब आ गए इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए, पर सबको काम नहीं मिला. दे वर इलिटरेट और उन्हीं को काम मिलता है, बट सप्लाई बहुत ज़्यादा है. आपने कभी ध्यान दिया होगा, जब हम मज़दूर लेने जाते हैं तो कार रोकते हैं या बाइक रोकते हैं, 10-12 मज़दूर इकट्ठे आ जाते हैं कि हमारे से काम ले लो. अब आप सोचें कि बिहार से वो ये काम करने आए थे? नो, वो काम करने आए थे किसी इंडस्ट्रीज़ में. इंडस्ट्री में 1000 में से 800 जनों को काम मिल गया, 200 को नहीं मिला. वो 200 लोग ये काम कर रहे हैं एंड दे आर इंडस्ट्रियल. दिस इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. माइग्रेशन की वजह से ये बढ़ी है. नेक्स्ट, एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. इसे मैं कहीं कहूँगा जॉबलेस ग्रोथ.
नो दिस इज इस वजह से माइग्रेशन टू अदर कंट्रीज, कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोग जा रहे हैं काम करने ड्यू टू एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। लोग पढ़ रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, डिग्रीज मिल रही हैं, पर जॉब नहीं मिल रही। दे हैव +2 वेरी गुड स्कोर, they have graduation, some of them have post graduation, but while finding a job they are not finding a good job. This is educated unemployment. In India ये क्यों है, पहले मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में देखते हैं ऑथर ने क्या लिखा हुआ है। से इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सेक्टर है वो तो ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है, बट जो वर्किंग सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज नहीं हुआ। ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती हैं। एजुकेशन सेक्टर बहुत अच्छा वर्क कर गया, स्कूल्स अच्छे खुल गए, कॉलेजेस ज़्यादा ओपन हो गए, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो गई, प्राइवेट प्लेयर्स ने यूनिवर्सिटीज़ ओपन की, पर कॉरस्पॉन्डिंगली जो वर्किंग था वो कैपिटल इंटेंसिव होना शुरू हो गया, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। तो यहाँ पे चंक निकल रहा है 1000 लोगों का काम करने के लिए, वहाँ पे डिमांड है लेबर की 800, तो 200 लोग वो हैं जो पढ़ लिख लिए बट उनको काम नहीं मिल रहा। इसी वजह से, प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसी वजह से इंडिया में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, क्योंकि वो 200 लोग अपने आप कोई ना कोई काम ढूंढ के शुरू कर लेते हैं काम करना। आई एम द एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम एडुकेटेड. That is another thing. I never tried to go to school or college. If I would, I don't think I would be satisfied. My dad has a business. I vowed to join that. I didn't. If I did, I did. I don't think I would be satisfied enough. So I'm self-employed. इस reason की वजह से, educated unemployment की वजह से ही self-employment इंडिया में ज़्यादा है. Self-employed workers इंडिया में ज़्यादा है, about 50%. In India, the problem of unemployment among the educated people is also underlined quite grave. हर साल, every year, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, पर इक्वलेंट जॉब्स नहीं प्रोड्यूस हो पा रही. It is a problem spread across all parts of the country because of massive expansion in the education facilities. अब विलेजेस में हम कहते हैं बेटी पढ़ाओ, विलेजेस में हम स्कूल खोल देते हैं, वहाँ पढ़ाई तो हो रही है बट वहाँ इंडस्ट्रीज पहुँच नहीं रही काम करने के लिए. These facilities have contributed to the growth of educated persons who are in the look of white collar jobs. White collar jobs नहीं मिल रही, तो जो विलेजेस के लोग पढ़े लिखे हैं वो सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनको कम सैलरी में काम करने की आदत होती है. तो जो एम्प्लॉयर है वो उस पर्सन को देगा काम जो कम सैलरी पे रेडी होगा. If I would be an employer, I have two persons, one A, B, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है पर एक कम सैलरी लेने को तैयार है, दोनों इक्वली एफिशिएंट है. I will hire A because I am under the profit making concern. So B in urban area and educated with well skilled remain unemployed. Due to this there is migration to Canada and New Zealand. इसी वजह से वहाँ पे माइग्रेशन बढ़ रही है. Sixth, technological unemployment. What is technological unemployment? Technological upgradation is taking place in all spheres of activity. People who have not updated their skills as per latest technology become technologically unemployed. See, इंडिया एक बहुत डायनामिक इकोनॉमी है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं. जो लोग अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपडेट नहीं कर रहे, द पर्सन्स जो टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी के साथ चेंजेस नहीं लेके आ रहे, वो रह रहे हैं अनएम्प्लॉयड. आई एम गिविंग 2-3 एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल नंबर 1, आप गूगल कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स को ये चीज़ ज़रूर पता होगी. अराउंड 1995 द नंबर 1 टेलीविजन ब्रांड इन इंडिया वॉज टेक्सला, Onida. With न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, LPG पॉलिसीज़, बाहर की फर्म्स इंडिया में एंटर करती हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आती हैं. बाय 2000 टीवी की टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है. ब्लैक एंड वाइट टीवी तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं. कलर टीवी के अंदर जो विड्थ वाइज ज़्यादा टीवी थे वो छोटे, वो LCDs में कन्वर्ट हो गए.
ओनिडा और टेस्ला ने अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं की, और आज आप सबके सामने है, ना ही ओनिडा का टीवी आता है और ना ही टेस्ला का टीवी आता है। वहाँ पे जितने लोग थे वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयड। सेकेंड एग्जाम्पल नंबर 2, नोकिया फोन। When I was in 9th 10th, Nokia was number 1 in cell phone industry. गूगल ने एंड्रॉयड वर्जन निकाला और गूगल ने बोला है कि आप हमें सारा डेटा सेल करो, हम आपको सॉफ्टवेयर फ्री में देंगे। तो सैमसंग ने एंड्रॉयड फ्री में ले लिया, HTC ने एंड्रॉयड फ्री में ले लिया, पर कंडीशन क्या थी? फ़ोन के अंदर जितना डेटा होगा वो गूगल को सेल किया जाएगा, और आपको पता नहीं, आपको पता यू विल जस्ट से ओके। नोकिया डिडंट, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये चीज़ वैलिड नहीं की। ब्लैकबेरी फ़ोन्स उस टाइम नंबर 1 फ़ोन थे। मैं केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ। मीनवाइल हुआ क्या? दे आर टेक्नोलॉजिकल आउटडेटेड। ना ही इस टाइम ब्लैकबेरी के फ़ोन्स चल रहे हैं और ना ही इस टाइम हमारे फ़ोन्स चल रहे हैं नोकिया के। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आउटडेटेड हो जाती हैं। Technological upgradation is taking place in all spheres of the activity. People who have not updated their skill as per latest technology becomes technologically unemployed. So we have done 6 types of unemployment. Open unemployment, able to work, want to work at existing wage rate, does not get work. Seasonal unemployment, slack seasons, doesn't get work. Disguised unemployment, their marginal productivity is 0 or negative. They want to work, they think they work, they are working, but actually they are not. Industrial unemployment, due to migration from rural areas to urban areas. Educated unemployment, degrees they have in hand but the work they don't. And technological unemployment, outdated technology using persons or activities or firms does not get the work. मूविंग ऑन, पेज नंबर 112, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पेज 112। हाउ NSSO defined unemployment? NSSO defines unemployment as a situation in which all those who are owing to lack of work, काम कम कर रहे हैं, आर नॉट वर्किंग बट सीक वर्क थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, पर वो काम ढूंढ रहे हैं, इंटरमीडिएट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स. दे ऑल्सो सीक वर्क बाय मेकिंग एप्लीकेशन टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स or express their willingness or availability for work under prevailing conditions of work and remunerations. All those who want work, they are giving their resumes, they are telling their friends, relatives he is or she is ready to work but does not work. According to NSSO, is unemployed. Page 112, question number 14. Page 112, question number 14. Why do people prefer to be voluntary unemployed? बहुत सारे लोग हैं जो voluntary. What is voluntary? Volunteer मतलब होता है अपनी मर्जी से. Volunteer means अपनी मर्जी से. बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से ही बेरोजगार रहना बेटर फील करते हैं, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड होते हैं. ऐसा क्यों है? 1, रेम्यूनरेशन अच्छी नहीं है. देयर इज अ CA जिसे एक टीचिंग जॉब मिल रही है 20,000 में, मे बी ही विल नॉट डू, मे बी. 2, फैमिली प्रेशर. 3, वर्किंग environment. So they better to keep unemployed themselves, that is voluntary unemployed. Or they have money, enough wealth, they do the leisure activities. People, page 14, question 14th PM. People prefer to be voluntary unemployed for the below mentioned reasons. They do not want to work at the wages they are being offered. Remuneration is less. They are not willing to migrate to the place at which job has been offered. The area of work is far. They think the job offered is below their caliber. जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, CA को अगर टीचिंग जॉब मिल रही है, मे बी ही विल नॉट टेक दैट.
So these are the three reasons. You may write any other, ब्रैकेट में लिख लीजिए, any other relevant reason will do. Any other relevant reason, any other relevant reason will do. कोई और relevant reason चलेगा. Question number 10. Are the following workers, क्या ये workers है? A beggar, thief, चोर, स्मगलर एंड गैम्बलर, क्या ये सारे वर्कर हैं? सबसे पहले ध्यान दीजिए, क्या इनमें से कोई भी इनकम अर्न करते हैं? यस, सभी करते हैं. अब क्या इनमें से कोई भी वाइट इनकम अर्न करता है? वाइट इनकम मतलब जिस पे टैक्स पे हो. डू यू थिंक इनमें से कोई भी टैक्स पे करेगा? नो. क्योंकि थीफ, स्मगलर और गैम्बलर ये तीनों जो पैसे कमाते हैं ये ब्लैक मनी है, क्योंकि ये इनका जो वर्क है वो इंडिया में अलाउड नहीं है, तो ये शो ही नहीं करते इन्होंने पैसे कमाए हैं, तो उस वजह से टैक्स पे नहीं होता. और जो बैगर है, दैट फॉर सम पेटी रीजंस डज पेटी अमाउंट डज नॉट कम्स अंडर द प्रिव्यू ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटीज. क्योंकि चाहे ये पैसा कमाते हैं, क्योंकि ये पैसा गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं होता, इंडिया की जीडीपी पे काउंट नहीं होता, इसका मतलब बुक्स के अंदर इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये प्रोडक्शन नहीं कर रहे. देयर इज नो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंकर्ड एंड हेंस दे आर नॉट वर्कर्स. सो अ बैगर एंड अ थीफ एंड अ स्मगलर एंड अ गैम्बलर आर नॉट वर्किंग. दे आर एक्चुअली वर्किंग बट below the table, under the table. They are not working and hence no production of goods and services and hence no circulation of money, no participant of GDP, thus not the workers. A beggar, a thief, a smuggler and a gambler are not considered workers as they do not work or not engaged in, please underline, not engaged in any productive economic activity. Any productive economic activity which may contribute to GDP of the country. कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे जो GDP में काउंट किया जाए. क्लियर? So moving on, question number 21 on page 114. Page 114, question number 21. What is seasonal unemployment? हमने काफ़ी टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट की है, उसमें से सीजनल आ रही है. व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? सजेस्ट मेजर्स फॉर रिड्यूसिंग दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. जैसे हमने पढ़ा है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है पूरे साल में कुछ टाइम एम्प्लॉयड और कुछ टाइम अनएम्प्लॉयड. समटाइम्स इट्स अ पीक सीजन, समटाइम्स इट्स अ स्लैक सीजन. आइसक्रीम फैक्ट्रीज और यू में से जो कंबल बनाते हैं दैट इज़, और गीज़र्स बनाते हैं, गीज़र्स फैक्ट्रीज, और यू में से एग्रीकल्चर जो मल्टी क्रॉपिंग नहीं करते वो फार्मर्स. और बताइए इसे कम कैसे किया जा सकता है? सीजनल अनएम्प्लॉयड को कैसे, एम्प्लॉयमेंट को कैसे कम किया जा सकता है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ नंबर ऑफ पर्सन्स आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब in a particular season. It occurs in case of agriculture, ice cream factories, woolen factories, etc. Following measures may be suggested to reduce the seasonal unemployment. 1. Promotion of multi-cropping. Agriculture के अंदर multi-cropping की जाए. You know what is multiple cropping? That means sometimes wheat, sometimes rice, और wheat के साथ lentils. इसके लिए थोड़ी नॉलेज होने की ज़रूरत है, ताकि यू नो दैट इज़ अ साइंटिफिक टर्म. अगर एक क्रॉप ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ कर रहा है तो सेकंड क्रॉपिंग वो करनी चाहिए जो नाइट्रोजन रिलीज करे. रेजिंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ ईयर. 2. Development of facilities allied to agriculture such as animal husbandry, dairy farming, horticulture to provide extra employment through the year. ब्रैकेट में लिख लीजिए डिवर्सिफिकेशन. दिस इज द टॉपिक रिलेटेड टू रूरल डेवलपमेंट. ब्रैकेट में लिखिए डिवर्सिफिकेशन.
Third, public investment in rural areas in such fields as irrigation, drainage, flood control, land and environment of rural roads, schools, hospitals, etc. Public investment in rural areas, यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट खर्चा करे रूरल एरियाज में ज़्यादा. पब्लिक इन्वेस्टमेंट को अंडरलाइन करके लिखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. पब्लिक इन्वेस्टमेंट को अंडरलाइन करके लिखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. Fourth, promotion of on-farm investment, overall of machinery, training of farm labor and programs for eradication of illiteracy during the slack seasons. Underline slack seasons. Slack seasons bracket में लिखिए the season in which there is no production. The season in which there is no/zero production. So promotion of on farm investment, underline on farm investment. What is on farm investment? जैसे होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जॉब दे के उसको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसे प्रैक्टिकली समझ आए काम कैसे करना है. दिस इज समथिंग ऑन फार्म इन्वेस्टमेंट. अंडरलाइन ऑन फार्म इन्वेस्टमेंट. एक्सप्लेन कीजिए. यू हैव द स्पेस ऑन द सेम पेज और कॉरस्पॉन्डिंग टू द रफ पेज. लिखिए व्हाट इज ऑन फार्म इन्वेस्टमेंट. ऑन फार्म इन्वेस्टमेंट refers to the investment by the farmers with farmers. जरूरी नहीं है सिर्फ फार्मर इन्वेस्ट करें, फार्मर के साथ गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर सकती है. स्लैश के बाद with farmers, comma, on the farm when the farm is not used for agricultural purposes. When the farm is not used for agricultural purposes. इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि एक फार्म है, 8 महीने उस पर काम चल रहा है, 4 महीने काम नहीं चल रहा. जब 4 महीने काम नहीं चल रहा उस जगह को यूज किया जाए. लाइक एक स्कूल ओपन कर दिया जाए जहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं फार्मर्स को सिखाने के लिए. वो 4 मंथ्स के अंदर वो जो लैंड होगा वो यूज़ होगा. लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एसेट. उसको 4 महीने के लिए फ्री रखा गया, एटलीस्ट उस पर कुछ काम किया जाए. दिस इज व्हाट ऑन फार्म इन्वेस्टमेंट. Mechanism of peak season activities so that a proportion of the labor force is permanently shifted from agriculture to non-seasonal activities and surplus labor in the slack season is reduced. Peak season activities को mechanism कर दिया जाए. That means जैसे कि let it be, मैं ऐसे explain कर रहा हूँ. 8 months में 1000 लेबर काम कर रही है, 8 hours, और 4 months में 0 लेबर काम कर रही है, 0 hours. Got it? I think you are clear with this. Total 1000 into 8, 8000 hours काम हो रहा है डेली बेसिस पर. 1000 लेबर 8 घंटे काम कर रही है तो डेली 8000 घंटे काम हो रहा है. इसे कहते हैं मैन आवर्स, 8000 मैन आवर्स. और 4 महीने कोई भी काम नहीं हो रहा, 0 मैन आवर्स. 8000 मैन आवर्स काम हो रहा है डेली और यहाँ पे 0 मैन आवर्स काम हो रहा है डेली. राइट. एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि 8 मंथ्स में 800 लेबर काम करे 10 आवर्स. 8000 मैन आवर्स 10 घंटे काम किया जा सकता है. काम देखिए उतना ही हो रहा है. पहले भी 8000 घंटे काम हो रहा था, अभी भी 8000 घंटे काम हो रहा है. बल्कि यहाँ पे 1000 लेबर 8 घंटे काम कर रही थी, यहाँ पे 800 लेबर 10 घंटे काम कर रही है. मतलब 800 लेबर को ज़्यादा पैसा मिलेगा. यस और नो?
ज़्यादा काम होगा, उनको बेनिफिट मिल गया। बाकी ये जो 200 लेबर है उनको बारह महीने के लिए 8 घंटे डेली काम दिया जाए 200 लेबर्स को। कौन सा काम? कोई नया काम ढूंढा जाए जो इससे रिलेटेड ना हो, जो ऑफ सीजन ऑन सीजन तीनों में काम करे या दोनों में काम करे, या लेट इट बी वो 6 घंटे काम करे, दैट वुड बी ओके। सी 1000 लेबर है 8 घंटे काम कर रही है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म दे आर टॉकिंग अबाउट इन 6th। 1000 लेबर 8 घंटे काम कर रही है पीक सीजन में, और 4 महीने सारी की सारी लेबर वेली बैठी है। तो हम उस 1000 में से बोलेंगे भाई कौन सा 10 घंटे काम करना चाहता है? करना आपने 8 घंटे ही काम है, 8 महीने ही काम करना है, 10 महीने के 10 घंटे डेली, तो 800 लेबर वहाँ चल जाएगी। और जो 200 लेबर है उन्हें बोला जाएगा आपको 6 घंटे काम मिलेगा, पर पूरे साल के लिए मिलेगा। और बहुत सारी लेबर कहेगी दैट वुड बी गुड, बहुत वुमेन लेबरर्स आ जाएंगी कि हम इस तरीके का काम करेंगे क्योंकि 8 की बजाय 6 घंटे काम करना है, बट करना पूरे साल है। ऐसा कुछ मैकेनिज्म फाइंड आउट करना। Mechanism of peak season activities so that proportion of the labor force is permanently shifted from agriculture to non-seasonal activities and surplus labor in the slack season is reduced. और यहाँ पर 8 घंटे वेले बैठे थे, यहाँ पर 2 घंटे डेली बैठे हैं, तो वो स्लैक सीजन कम हो गया। Establishment of a variety of industries which operate at different times of the year so that labor may be kept employed almost throughout the year by shifting one season industry to another. विलेजेस में कुछ इंडस्ट्रीज ओपन करो जो सिर्फ साल में 4 घंटे काम करे। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, बट पॉसिबल है। डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो जब वो एग्रीकल्चर से फ्री हो, वो इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर पाए, और फिर इंडस्ट्री से वो दोबारा एग्रीकल्चर पे आए। फिर इंडस्ट्रीज ध्यान दे प्रोडक्शन पर नहीं, सेलिंग पर। जब लेबर का काम नहीं होता, मैनेजर्स का काम होता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एंड दिस इज इन एंड ऑन काम। इन चीज़ों से ये सारे वो 6 पॉइंट्स हैं जिससे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है? अनएम्प्लॉयमेंट इज द पर्सन इज नॉट गेटिंग वर्क, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज ही इज गेटिंग वर्क बट फॉर द लेस टाइम। लाइक एक मंथ में 15 दिन, एक हफ्ते में 4 दिन, या एक साल में 8 महीने। मैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट से इसको रिलेट नहीं करूंगा, क्योंकि सीजनल के अंदर क्या होता है, सीजन है तो ज़्यादा काम, नहीं है तो बिल्कुल काम नहीं। इसके अंदर क्या है, आपको एक साल में 6 महीने ही काम करना है। जैसे कुछ वेडिंग फोटोग्राफर्स होते हैं, या फिर वेटर्स होते हैं, बैंड वाले होते हैं मैरिजेस के अंदर, ये सब आते हैं इस कैटेगरी के अंदर, अंडर एम्प्लॉयमेंट। हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट फ्रॉम अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्ड इन इंडिया? Unemployment is a situation in which our people are willing and able to work, capable to work, but they still are not getting work. Underemployment, on the other hand, is a situation, please underline, the individual is working much below his potential. Person अपने potential से कम काम कर रहे हैं। As per 27th round of NSSO, there are 3 types of estimates available. 1. Usual status unemployment. It is measured in number of persons who remained unemployed for the major part of the year. 2. Weekly status unemployment. It is measured in the number of persons who did not find any work even for an hour during the week preceding the survey week. हर हफ्ते कैलकुलेशन होती है, जिस हफ्ते कैलकुलेशन हुई उससे पिछले हफ्ते अगर आपने एक दिन भी काम नहीं किया। डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट. Daily status unemployment is measured in terms of number of man days a person was not getting work on a day during the week preceding the survey week. Out of these 3, the daily status unemployment concept is most appropriate because it takes into consideration on both open and underemployment. Unemployment rate by daily status is, please underline the formula,
डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, जितने लोग डेली बेसिस पे अनएम्प्लॉयड हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मैन डेज अवेलेबल इनटू 100. दिस इज कॉल्ड मैन आवर्स. ऐसे ही होते हैं मैन डेज इनटू 100. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट ने पब्लिश करना बंद कर दिया डेटा कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, बिकॉज आज के टाइम पे जो ऑपोजिशन पार्टी है वो है ही नहीं, ऑपोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं है. इस वजह से ये ऑथोरेटिव ऑप्शंस हैं कि गवर्नमेंट कहती है हमने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा शो नहीं करना, तो वो नहीं कर रही. एंड नो वन इज आस्किंग व्हाई, बिकॉज वी आर बिजी इन आवर डेली लाइव्स एंड द ऑपोजिशन पार्टी इज नॉट स्ट्रांग इनफ टू आस्क. And the media is almost sold. Just for your knowledge, the government is not giving the data related to unemployment from the last approx an year. Please read out what is unemployment and specifically underemployment. Please underline. Underemployment is, on the other hand, is a situation which is an individual is working below his potential. 3. Usual, they do not get work. Weekly, जिस साल वर्क सर्वे हुआ उससे पिछले वीक किसी भी दिन काम नहीं किया. डेली स्टेटस, जिस दिन काम सर्वे हुआ, मैन डे, इस हिसाब से कैलकुलेशन की जाती है, जितनी देर उन्होंने काम नहीं किया है. तो इसके अंदर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी कंसिडर हो जाती है, सीजनल अंडर अनएम्प्लॉयमेंट भी कंसिडर हो जाती है. गिविंग यू 1 minute, रीड इट आउट. 24th को रीड आउट कीजिए, 1 minute, नॉट मोर देन दैट. Okay, moving on. Now the point is, what government, I know there are 1 point left, to causes of unemployment and adverse effect, उस पर हम बाद में जाते हैं. पेज नंबर 111, पेज 111, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट ने अभी तक क्या किया है और गवर्नमेंट क्या कर रही है. हमने पिछले पेज पे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें 3 गिवन है, वो मैंने नहीं पढ़े क्योंकि वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ. कंसेप्ट में 3 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट है, क्वेश्चन आंसर में 6 टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड वी आर डन विद दैट 6, सो वी आर नॉट रीडिंग दिस 3. ओके, गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पेज 111. Since independence, the union and state government have played an important role in generating employment or creating opportunities for employment generation. Their efforts can be broadly categorized into direct and indirect. Direct employment means सीधा काम देना, indirect means कुछ और काम करना जिनसे उनको काम मिले. In this, government employs people in various departments for administrative purposes. It also runs industries, hotels, transport companies, and hence provides employment directly to the workers. गवर्नमेंट होटल्स ओपन कर रही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज ओपन कर रही है, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज ओपन कर रही है, गवर्नमेंट रेलवेज में भर्ती कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल्स में जॉब दे रही है टीचर्स को. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट? When output of goods and services from government enterprises increases, then private enterprises which receives raw material from government also raises their output. Hence, the number of employment opportunities in the economy increases. This is the indirect generation of employment opportunities by the government initiatives in the economy. What is indirect employment? गवर्नमेंट कोल की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही है, गवर्नमेंट आयरन की माइनिंग ज़्यादा कर रही है, गवर्नमेंट गोल्ड की माइनिंग ज़्यादा कर रही है, तो ये सब रॉ मटेरियल होता है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए. उस हिसाब से प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट.
बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स भी इन्होंने स्टार्ट की हैं, मनरेगा, नरेगा, ये सारी हम पॉवर्टी के अंडर ऑलरेडी कर चुके हैं। वी आर ऑलरेडी डन विद द पॉवर्टी। मैं वो नोट्स लिखवा दूंगा कौन सी। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो इनिशिएटेड वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सच एज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा, ऑलरेडी डिस्कस्ड, एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जा चुकी है। These programs aims at providing not only employment but also services in areas such as primary health, primary education, rural drinking water, nutrition, assistance for people to buy employment generating assets, investment करना, development of community assets, कोई ऐसा एसेट खरीदना जो विलेज में सारे इकट्ठा खरीद ले, जैसे कोई वेल, कुआं, by generating wage employment etc. कम्युनिटी एसेट का मतलब होता है कि पूरे विलेज का एक एसेट, ट्यूबवेल, एक ट्यूबवेल का खर्चा काफ़ी सारे फार्मर्स ने इकट्ठा किया और सभी यूज़ कर सकते हैं। दे डिवाइड द यूसेज ऑफ देयर एसेट। द वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम हैव बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर 4 पॉवर्टी। अगर आपके पेपर में या स्कूल के टेस्ट में ये चैप्टर आ रहा है तो आपको ये स्कीम्स भी आनी चाहिए, चाहे वो दोबारा पॉवर्टी में हम कर चुके, स्टिल यू हैव टू डू इट। नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए, राइट डाउन इन ब्रैकेट, पेज 62, पेज 62 एंड 63 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, ब्रैकेट में लिखिए रेफर पेज 62 एंड 63। क्लियर? पेज नंबर 113, page 113, question number 16. This is last for this lecture. Page 113, question number 16. What role does the government play in generating employment opportunities? गवर्नमेंट ने क्या किया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए? इसको आप दो तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे हमने पढ़ा है, या फिर वो स्कीम्स मेंशन कीजिए मार्किंग के हिसाब से। अगर 6 मार्कर है तो वो 6 स्कीम्स को मेंशन कीजिए, जैसे मनरेगा। द गवर्नमेंट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट थ्रू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एफर्ट्स। द गवर्नमेंट मेक्स डायरेक्ट एफर्ट्स एट एम्प्लॉइंग पीपल इन वेरियस डिपार्टमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस. It runs various enterprises, and when the result in increased output of goods and services, they led to further increase in employment. The various private enterprises that are linked to the government enterprises, they are telling about the raw material of government they get from government, might also benefit from the increased output of these enterprises and thus increase their output and employment also. This way government also indirectly generates employment. ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए, स्टूडेंट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरियस स्कीम्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट. Students can also write the various schemes initiated by the government to eradicate poverty by increasing employment opportunities, ब्रैकेट में पेज 62 एंड 63, ब्रैकेट में पेज 62 एंड 63. सो आज हमने किया व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद व्हाट गवर्नमेंट हैज डन टू रिमूव दैट. छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बट यू में से क्वेश्चंस के अंदर काफ़ी सारे कंटेंट बाहर निकल के आते. टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस. मे बी
one more lecture or two, and we are done with the chapter unemployment, the challenge Indian economy is facing right now. Bye bye, take care.